بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح کی تیاری سے آپ کا میزبان رفیق انصاری آج ہم بڑی خاص جگہ پر موجود ہے جسے کہتے ہیں عالم باغ تھانہ, اور یہاں پہ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جاتا ہے. اور یہی بات ہے کہ آج رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے, رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. یہاں طالب بھی موجود ہیں, یہاں سیاستدان بھی موجود ہیں, اور یہاں پولیس کے اعلیٰ افسران جو کہ دن بھر روزہ رکھ کر ڈیوٹی پہ اپنے فرائض انجام دیتے. آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلامی ربانی سے کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں توفیق صاحب. ان سے کہیں گے کہ بلائے آپ کی تلاوت کلام ربانی سے ہمارے دلوں کو منور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہوا, اور بڑی خوبصورت تلاوت جو ہے سفیان نے کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کی بڑی خوبصورت تلاوت کی. اور آج کا سحری کا جو اہتمام ہے وہ عالم باغ ایسے جو, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھی منیر حق اور دیگر لوگوں نے آج کی سحری کا اہتمام کیا ہے. اور کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا دوسرا اشرا بھی اس وقت چل رہا ہے جسے کہتے ہیں مغفرت. پہلا اشرا رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات. ہمارے ساتھ تلاوت کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں گے اویس اجمیری صاحب. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو چاہے تو بات بن جائے. حضور آپ جو چاہے تو بات بن جائے. حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. میرے ساتھ اس وقت عالم باغ تھانہ ایسو جو پون کمار صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ قربان علی صاحب جو کہ وہ بھی موجود ہیں, اور ممتاز تاجر رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کچھ باتیں ہوگی سحری کے حوالے سے, مگر پون کمار صاحب کا شمار ایک اچھے افسر میں ہوتا ہے, کیونکہ یہاں جتنی بھی تاجر برادری ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ایسا افسر اگر ہر تھانے میں ہو تو وہاں پر ایمانداری کا ایک پھول بن جاتا ہے. تو ہم بات کرتے ہیں پون کمار صاحب سے سحری کے حوالے سے, اور رمضان المبارک کے اندر جو انہوں نے اپنے نفری لگا رکھی ہے مختلف مساجد پہ جو کہ لائن آف کنٹرول کو روکنے کے لیے. پون صاحب السلام علیکم. وعلیکم پون صاحب, رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, اور آپ کے لیے تو بڑی سخت اس وقت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, کیا ایس او پیز کا بھی ہے, تمام حکومت کی سطح پر جو ایس او پیز کا خیال کرا جا رہا ہے. اور تھانے میں دیکھ رہا ہوں کہ آج آپ نے جو اہتمام کیا تو سب لوگ ایس او پیز کا خیال کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایس او پیز تو دیکھو ایک ضروری چیز ہے, کیونکہ یہ جو ناگہانی آفت جسے کہا ہے, یہ جو آئی گئی ہے ہمارے پاس اس وقت, تو وہ کرم ہے اللہ کا کہ یہاں پر اتنا وہ نہیں ہے اس کا زور.
जबकि हम अपने साइड ममालिक है हमारा भारत, वहाँ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जगह नहीं है, हॉस्पिटलों में तो कम है, घरों में भी नहीं है जगह। तो इस वबा से बचने के लिए ज़ाहिर बात है हमें अपने ख़ुद को, अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने इलाके को बचाना होगा और ये SOP का ख्याल करना पड़ेगा। और अच्छा पवार साहब, रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है और यकीन तौर पे कि जो आपके SOC हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ मस्जिद हैं तो वहाँ नफरी की ज़रूरत होती है। असल में ये हमारी बदकिस्मती है। अगले साल भी जब मैं कोविड आया था तो मुझे दुख भी हो रहा था, बहुत परेशान भी था। मैं लोगों से कह रहा था यार देखो ये क्या दिन आ गए हैं कि हम लोग को मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं, नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, ये क्या दिन है। मुझे यकीन करो मुझे बहुत दुख हो रहा था दिल से कि हम उनको मस्जिद में जाने से रोक रहे थे। ये सिर्फ इस आफत की वजह से, नागानी आफत जो हमारे पास आई है इस वजह से। तो करम अल्लाह का अब वो सिचुएशन नहीं है कि हम किसी को रोकें। वो अपनी नमाज अदा कर रहे हैं, तरावी हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। बस यही है कि अपनी SOP का ख्याल रखा जाए। बाकी नफरी लगाना, नफरी इसलिए नहीं है कि हम उनके ऊपर लगा रहे हैं, नफरी का ये है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ऐसा ज़ाहिर बात है कोई शैतान फितना कहीं भी आ सकता है, तो हम उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी काज से हम वो नफरी लगा रहे हैं। अच्छा, आपसे ताजिर रहनुमा इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? तमाम मार्केटों में जो रहनुमा है वो उन कहते हैं कि पवन कुमार जैसा जो है तो आना चाहिए इलाके में, ऐसी क्या वजह, क्या खूबी आपके अंदर? दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें हैं, या पैसा या इज़्ज़त। जहाँ मैं पैसे के पीछे चलूँगा तो मेरी इज़्ज़त ज़ाहिर बात है वही होगी जो आम रूटीन में किसी की होती है। तो सबसे मैंने पहला अल्फाज ये कहे थे कि जितने भी ताजर रहनुमा हैं, जितने, तो हमारा जो महकमा है ना, पुलिस महकमा, ये आउटपुट नहीं देता है, कमा के नहीं देता है। हम आपकी जो कमाई होती है, आपका जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, उससे मेरे बच्चे पलते हैं, उससे मुझे तनख्वाह मिलती है। जब मैं खाऊं भी आपका और डंडा भी आपके ऊपर चलाऊं, हुक्मरानी भी आप पे करूं, तो वो मुझे मुनासिब नहीं लगा। बहरहाल मुझे उनसे जो है ना ताजरों का ख्याल करना पड़ता है, और ख्याल करूंगा। और जब तक अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो मैं ज़ाहिर बात है मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो भी लीगल मामला हैं, जो भी पवार साहब ये बताइएगा कि हमारे पुलिस के जो नौजवान हैं वो तपती धूप होती है, उसमें रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास के, उसके बावजूद भी आवाम की बड़ी खिदमत करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? ज़ाहिर बात है, देखो मैं जितना मेरा खुद का ज़ाती तज़किया है कि मुझे जितना वो मेरे जो ज़ाहिर बात है मेरे बच्चे हैं, मेरे जवान हैं जो तपती धूप में भी होते हैं, और जो है ये जैसे क्या क्रिमिनल लोग हैं उनको भी फेस करते हैं। अब सिंपल सी बात आती है, किसी क्रिमिनल को अगर उसी दिन भी एक डकैती का केस आया, मुद्दई ने कहा कि भाई मैं तो दुश्मनी नहीं रहता, मैं तो केस दाखिल नहीं कराऊंगा, अब उसने चाहिए उससे, फिर भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज़ को अंदाज़ा देखकर मैं कह रहा हूँ हम कितनी दुश्मनी लेते हैं लोगों से। 24 घंटे मेरे पास वेपन तो नहीं है, और वेपन है तो अलर्ट पोजीशन में तो नहीं हो 24 घंटे, इसके बावजूद हम ये दुश्मनियाँ भी लेते हैं। कितनी महज एक तनख्वाह पे जो गवर्नमेंट हमें दे रही है वो दुश्मनियाँ भी लेते हैं, फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, तपती धूप में ड्यूटियाँ भी करते हैं, और उसके बाद भी आप लोगों की इतनी ताउन मिलता है जिससे खुशी मिलती है। आपका ताउन हमें ऐसे लगता है जैसे वो शदीद गर्मी में, बहुत तपती धूप में थोड़ा सा हवा का जो झोंका आता है, जिसे मेरे ख्याल में पवन कहते हैं मेरे नाम से, तो वो पवन जब आती है ना तो वो लहर बस ठंडा कर देती है इंसान को। तो वो आपकी जो पवन की हवा है ना, जैसे आप जो देते हो, उससे हमारे जवान बिल्कुल खुश हो जाते हैं। हमारे साथ पवन कुमार साहब आरामबाग एसोचो मौजूद थे और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बातचीत चल रही थी। मेरे साथ एक और पुलिस अफसर मौजूद है और कुर्बान अली साहब, और यकीन साहब ये पवन साहब को देख के बड़े खुश होते हैं, कुछ तारीफ भी उनकी करेंगे। मगर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इनकी बात करें कि अफसर की तारीफ करनी चाहिए कि जो अच्छा अफसर होता है और जो अच्छा काम लेता है तो उसकी जो अफसरान नीचे वाले होते हैं वो तारीफ करने के लायक होते हैं। कुर्बान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुर्बान साहब ये बताइए कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है तो रोज़े कैसे चल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने SHO पवन कुमार साहब का। उसके बाद हम शुक्रगुजार हैं ताजर बिरादरी साहबान के, और मैं शुक्रगुजार हूँ के 21 भाइयों की कि वो यहाँ हमारे SHO के रिक्वेस्ट पे इफ्तार पार्टी में शरीक हुए, मुझे शहरी में शरीक हुए, तमाम खुशी है हमें। मैं हक़ की बात करूँगा। अल्लाह तबारक ताला इंसानों को पैदा किया है तो इंसानों की ही खिदमत करें। मुझे खुशी है अपने ऑफिसर पे
SHO पे, اور مجھے فخر بھی ہے اور مجھے ناز بھی ہے کہ مجھے 3-4 مہینہ ہوئے ہیں میں یہاں استانے میں آیا ہوں، اور آتے ہی اس نے ایسے پیار اور محبت دی ہے ہمیں، ہمارے سارے اسٹاف کو۔ انہوں نے یہی کہا کہ میں نے جب چارج سنبھالی تھی آرام باغ کی، SHO صاحب نے کہا کہ میں نے عوام سے محبت، عوام سے پیار، تاجران سے محبت، تاجران سے پیار کیا ہے، اور آپ بھی ہمارے نقش قدم پہ بیٹا چلنا اور جوانوں کو بھی چلانا۔ اور ہم نے کوشش کی ہے جیسے ہمارے SHO صاحب نے جو حکم دیا ہے ہم ہر اس حکم کو لبے کیا ہے اور عوام کی خدمت کی ہے، اور خدمت کرنا ہمارا فرض بھی ہے۔ اچھا، آپ کے جو ساتھی باہر کھڑے ہو کے وردی کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ مجھے اپنے ان جوانوں پہ بھی فخر ہے، اپنے آپ پہ بھی، اپنے SHO پہ بھی فخر ہے، جو سردی میں، گرمی میں، روزوں میں جہاں جہاں ہمارا ڈیوٹی ہوتی ہے، کو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، مسجد کی حفاظت کرتے ہیں، جہاں جہاں عبادت ہوتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، عوام کی خدمت کرتے ہیں، عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قربان علی صاحب موجود تھے اور ان کا بھی تعلق آرام باغ تھانے سے، اور ہم چلتے ہیں ایک تاجر رہنما کی طرف، اور وہ بھی بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی خدمت کر رہے ہیں اور SHO صاحب کے قریب ہوتے ہیں، اور یہ نام ان کا آفرین صدیقی۔ ان سے بھی کچھ بات کر لیتے کیونکہ آج کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ آفرین صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آفرین صاحب، آج آرام باغ تھانے میں موجود ہیں آپ، اور یہاں سحری کا اہتمام کیا گیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آرام باغ تھانے جیسے پورے کراچی کے تھانے بن جائیں، اور اسی طرح کے SHOs پورے کراچی میں لگ جائیں، تو میرا خیال ہے کہیں پہ کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ میں مختصر ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ ابھی اور بھائی بھی بیٹھے ہیں، تاکہ اوروں کا بھی سب کا ہو جائے، سب سے بات چیت ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سحری کے بارے میں بتائیں۔ سحری تو اللہ پاک کا کرم ہے، سحری تو یہ مل کے کرنے کا مزہ ہی الگ ہے، اور آرام باغ تھانے کا بہت شکریہ، کیونکہ آرام باغ تھانہ اور جس میں SHO صاحب، اس کے اندر سارے کردار میں SHO صاحب ہیں، یا ہمارے قربان صاحب ہیں، یا باقی تاجر برادری، سب کے اس کے اندر حصے داری ہے، پیسوں میں نہیں ہے، حصے داری سے مقصد ہے کہ ہم ایک ساتھ مل کے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آفرین صدیقی صاحب موجود تھے، اور یہ تاجر رہنما تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی میرے بھائی موجود ہیں، ان سے بھی کچھ معلوم کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی سحری کے دسترخوان پر موجود ہیں، تو ان سے بھی کچھ پیاری پیاری سی باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ نوید اقبال صاحب، جن کا یہ کہا جاتا ہے، نوید صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے، اور ان کی انہوں نے گولے کے حوالے سے بتایا گولا کباب، تو ماشاءاللہ یہ بھی گول بھٹولے اور گولے کباب بھی موجود ہوتے ہیں، مگر رمضان میں یہ تو ایک مختصر سی بات ہے، پیار محبت کی بات ہے، اس سے کوئی مذاق نہ لے۔ نوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نوید صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ماشاءاللہ متبرک مہینہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اس ماہ رمضان کے برکت سے سب یہ جو کرونا کے وبا چل رہی ہے اس سے چھٹکارا ہو، اور سب ماشاءاللہ سب یہاں بیٹھے ہیں۔ اچھا، SOPs کے حوالے سے کتنا کاروبار پہ فرق پڑا ہے؟ SOPs کے حوالے سے تو تمام جو ہم دیکھیں ریسٹورینٹ جو ہیں بہت عمل کر رہے ہیں اس پہ، لیکن تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے، لیکن اتنا کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل SOP پہ عمل کیا جائے، جہاں تک ہو سکتا ہے بالکل کر رہے ہیں اس پر۔ اچھا، ہمارے ساتھ ابو مطالب صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کا تعلق ہے جدہ آئس کریم، اور یقین جب جدہ آئس کریم کہہ رہے ہیں تو دلوں کو یہ کرتے ہیں ٹھنڈا، اور ٹھنڈا جو جب دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہاں پہ باتیں بھی بڑی پیاری پیاری ہوتی ہیں۔ تو مطالب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا نام ہے جدہ، اور جدہ آئس کریم ایک بڑا نام ہے، اور جدہ بھی ایک بڑا نام ہے، جہاں لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جدہ میں اترتے ہیں، پھر وہاں سے مکے کے لیے روانہ ہوتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، تو جدہ آئس کریم جو ہے ٹھنڈا کتنی پہنچا رہا ہے؟ جی اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں محبتوں کے ساتھ۔ اچھا، آج آرام باغ تھانے میں پون صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہاں سحری کا اہتمام کیا، تو اس بارے میں کیا کہو گے؟ یہ دیکھ کے اور پون صاحب نے بلایا، بہت خوشی ہوئی ہمیں تمام تاجر لوگوں کو، ماشاءاللہ محبتوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ عبد المطالب صاحب موجود تھے، ان کا تعلق جدہ آئس کریم سے تھا، اور بڑی زبردست باتیں ہو رہی تھی کیونکہ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے ساتھ، وہ بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بھی گفتگو ہوگی دیگر تاجروں سے۔
ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जद्दा आइसक्रीम के हवाले से बात हो रही थी और जद्दा के हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि जद्दा आइसक्रीम यानी आइसक्रीम ठंडी ठंडी होती है। तो मेरे साथ मौजूद है अवैस अजमेरी साहब, और जिनका ताल्लुक एक सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सियासी रहनुमा है। इनसे भी बात करते हैं। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब ये बताइए कि आपने बड़ी खूबसूरत सी नात पढ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाई अकीदत के नजराने पर, और अब सियासत में वाबस्ता है। तो सियासी लोगों ने जो है इस वक्त तजारती मराकज़ हैं वो सियासी हुकूमत से बड़ा परेशान है, यानी वफाकी हुकूमत से। तो ऐसी क्या वजह है? अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सहरी का प्रोग्राम पवन कुमार साहब के दावत पे रामबाग थाने के अंदर रखा गया है। सबसे बड़ी तब्दीली तो यही है कि ये पवन कुमार साहब ने ये प्रोग्राम रखा है और ये ताजिरों के लिए सजाया है। सबसे बड़ी तब्दीली ये है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि यही इस्लाम की तालीमात थी और दीन इस्लाम यही हमें सिखाता था कि चाहे कोई किसी भी मज़हब से हो, मोहब्बतों का दर्स आपको हमेशा अमन का, मोहब्बत का दर्स इसी तरीके से बांटना है जिस तरीके से पवन कुमार साहब ने आज ये मिसाल कायम की है। मैं आज आपको इतना पवन कुमार साहब के बारे में बताता चलूँ कि जब ये थाने में आए थे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत लोड था इस एरिया का कि लोगों को बड़ी शिकायत होती थी थाने से। आज उस वक्त हम दिन में 2-2 दफ़ा चक्कर लगाया करते थे थाने में अगर किसी के साथ मसला होता था। जब से पवन कुमार साहब आए हैं तो यहाँ सबसे बड़ी तब्दीली ये आई है कि अब कराची में, अब ये आरामबाग के थाने में सियासी लोग कम आते हैं क्योंकि आवाम को भरोसा ये दिला दिया गया है कि चाहे आपका सियासी असर रसूख हो या ना हो आपको इंसाफ पूरा मिलेगा। इसका भी क्रेडिट पवन कुमार साहब के पास ऊपर जाता है। अब हम महीनों नहीं भी आते तो इसका गिला रहता है। कह रहे तो चलो लाइन ऑर्डर का मसला था, ये आपने एसएचओ साहब की बात की, इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। जी जी। तो आपकी हुकूमत ने महंगाई पे कंट्रोल क्यों किया? उसकी तो बात करें आप। ये तो पवन कुमार साहब ने कंट्रोल किया। हमारी हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह यूटिलिटी स्टोर्स पे आप जाए तो आपको 68 रुपए किलो चीनी मिलेगी, जो लाइन लगाने के बावजूद भी नहीं मिल रही। ये भी पहली दफा ऐसा हुआ है। और लाइन लगाने के बावजूद भी अवैध नहीं मिल रही, वो यूं नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि जहां पे भी अगर आपको लाइन लगी हुई नजर आती है तो उसके लिए हम खुद आवाज उठा रहे हैं। हम खुद आवाज़ उठा रहे हैं जगह जगह जाके लोगों को जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हमें आवाज़ उठाता है हमें बताता है तो हम जाकर वहाँ पे आवाज़ उठाते हैं कि यहाँ पे ये मसाइल है और उसको फौरी तौर पे, फौरी तरजीही बुनियादों पर मैं K21 से भी कहूँगा कि अगर आपको कहीं नज़र आता है कि यूटिलिटी स्टोर्स वाले आवाम को परेशान कर रहे हैं, बिला वजह वहाँ से चीनी को गलत फ़रोख्त किया जा रहा है, बाहर फ़रोख्त किया जा रहा है, आप हमें कंप्लेन करें। अच्छा ये बताइए, आप रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, दूसरा अशरा चल रहा है, तो आप ये बताएं कि आज की जो तकरीब है सहरी की, तो सहरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उस बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे नबी की सुन्नत भी है और ये सहरी तमाम जितने भी हमारे दोस्त हैं ये आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, कराची के ये अपना आरामबाग के ताजिर हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इन सबको भी मेरा यही पैगाम है कि जिस तरीके से हमारे नबी ने पैगाम पहुँचाया है कि अमन का दर्ज दो, मोहब्बतें फैलाओ लोगों में इंतशार का बाइस ना बनो, लोगों में ऐसे चीज़ों का बाइस ना बनो कि जिससे अवाम को या किसी भी किस्म की किसी भी जगह पे किसी भी को भी तकलीफ पहुँचे। हमारे साथ मोहम्मद फराज साहब भी मौजूद हैं और बंस रोड फूड ताजिर यूनियन के ये सदर हैं। फराज साहब बड़े खुश रहते हैं हर वक्त, जब देखो ये मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि कारोबार इनका ऐसा है ना कि हर वक्त खाना पीना रहता है तो किसी को ये जो है मायूस नहीं होता। फराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज साहब ये बताइए कि आजकल तो फूड स्ट्रीट की हालत बहुत बुरी है और जैसे अभी से कहा कि हमारी हुकूमत ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो जो आपकी फूड स्ट्रीट वगैरह बंद है और काफ़ी आप लोगों को लॉस हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये तो जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल जो कोरोना का वबा दोबारा से आई है उसकी वजह से SOPs का मसला चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे बिज़नेस के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि होटलिंग का आपको पता है कि वफाक ने ऑलरेडी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की SOPs दी है, तो उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आवाम ख़ास तौर पर यह है कि होटल वाले तो सब कुछ करते हैं, होटल वाले SOPs भी अमल करते हैं। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि कम से कम आवाम भी ये ख्याल रखे कि वो जब किसी रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो वहाँ पर इंतज़ार करें, तरीके से SOPs का ख्याल करें और उस पर अमल करें। आवाम को हम जितना भी कहते हैं वो इस पर अमल। अच्छा ये बताइए कि आज सहरी का एहतमाम यहाँ आरामबाग थाने में किया गया है, तो इस बारे में क्या कहोगे?
बिल्कुल मैं अपने एसएचओ साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ शहरी का रखा, जबकि ये हमें रखना चाहिए था, तो हम किसी वजह से नहीं रख सके, लेकिन ये कि उन्होंने रखा और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। आपने कंजूसी क्यों की रखने में, क्या वजह? ये हाँ, ये बात है। हमारे पास मेन चीज़ यही है कि एसओपीज़ का मसला है। जैसे ही 12 बजते हैं और आपको पता है हमें होटल्स वगैरह बंद करने पड़ते हैं। पहले जब कोरोना नहीं था तो हमारे पास डेली पे बुनियाद पे सहरी भी होती थी और अफ्तारी भी होती थी और हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। हमारे साथ मोहम्मद फराज साहब मौजूद थे और बंस रोड फूड स्ट्रीट के इनके बराबर में हमारे एक और ताजिर भाई भी मौजूद हैं और यकीन तौर पर आरामबाग थाने आए हुए हैं और यहाँ इनको मदऊ किया गया सहरी के दस्तरखान पर। और यकीन तौर पर जब बड़े बड़े मज़ेदार खाने आएंगे तो हम उनसे भी पूछेंगे कि ये खाने कहाँ से आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि आज पवन कुमार साहब ने सहरी का एहतमाम किया है और बड़ा ज़बरदस्त, अभी तक तो खाने लगेंगे उसका पता चलेगा, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये कि सर ने जो मैसेज दिया है हम ताजिरों को, तो ये इससे सर का जो इमेज है वो हमारी नज़रों में और ज़्यादा जो है वो बेहतर हुआ है। सर की तारीफ़ मैं क्या करूं, सर खुद मकसद ये कि इतनी तारीफ़ के ऐसे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है सर के लिए कि मैं इनके लिए अदा करूं। जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिला था तो मैंने सर को जब भी देख लिया था कि सर किस तरह के इंसान है और इन्होंने जितना कोऑपरेट हम ताजिरों के साथ करा है तो मैं इसके लिए सर का थोड़ा सा प्यार से नाम भी ले लो, सर पवन कुमार सर। तो सर इसके लिए जो है ना बहुत अप्रिशिएट के जो है काबिल हैं और मैं सर को सलूट भी करता हूँ कि सर ने हमारे साथ जितना कोऑपरेट करा है। हमारे साथ एक ताजिर रहनुमा एक और भी मौजूद है, फैसल आगा साहब, जिनका देखें आगा सजी का नाम बड़ा मशहूर है और बड़ा ज़बरदस्त बातें भी करते हैं और इनका कहना है कि भाई बंस रोड के ऊपर जो है वो बड़े मज़ेदार फूड स्ट्रीट है और यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं। तो हमारा फैसल आगा साहब मौजूद है। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब ये बताइए कि आज सहरी का एहतमाम है और यहाँ तमाम ताजिर बरादरी नज़र आ रही है, पुलिस अफसरान भी नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना जो है वो मोहब्बत और अख़वत का दर्ज देता है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि ये रमज़ान का महीना जो है अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के ऊपर अल्लाह के हुक्म से सबों के लिए एक गिफ्ट है। तो ये एक 12 महीनों में से एक महीना ऐसा है जिसमें अल्लाह पाक बोलते हैं कि मांगो मुझसे जो मांगना है, तो और अल्लाह पाक अता भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि हम लोग मांगने में कोताही हो सकती है लेकिन अल्लाह के देने में कुछ नहीं हो सकती है। अल्लाह से जितना मांग सकते हैं इस महीने में मांगे। तो मैं पवन साहब से मालूम करता, पवन साहब ये बताइएगा कि आज जो सहरी का एहतमाम पुलाव है और आप ने जो एहतमाम किया आपके साथियों के साथ मिलके, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? सर असल पुलाव का मैंने इसलिए किया था कि पुलाव हमारे एक दोस्त हैं लियारी में, वो बनाते हैं बड़े अच्छा, तो ये जायका हमारे ताजर बरादरी के रहनुमा हैं आफरीन सिद्दीकी साहब, उनको बड़ा ये पसंद था और उनकी ये फरमाइश थी कि हम जो है ना पुलाव से सहरी करेंगे। तो ये उनकी फरमाइश पे जो है ना ये सादगी से ये पुलाव का था। अच्छा आपने कहा कि आफरीन सिद्दीकी साहब की फरमाइश पे किया गया, तो और भी ताजिर बैठे तो उनसे भी कोई फरमाइश ले लेते? सर इनकी फरमाइशें भी होती रहती हैं, हम साथ खाते रहते हैं। ये फरमाइश इनके पास तो हर चीज़ होती है खाने की, ये खुद बजात खुद एक जायका है, ये खुद जायका है, ये खुद एक जायका तो है। ये अपना जायका यहाँ टेबल तक क्यों नहीं पहुँचाया? सर बिल्कुल ये जायका हमेशा पहुँचता रहता है ये, लेकिन ये सहरी का जो हमारा टाइम था तो सहरी में हमने कोशिश ये की कि सादगी से तमाम एक वन डिश के साथ ही सहरी की जाए, क्योंकि अब हमारा सहरी का वक्त हो रहा है, सहरी पे दस्तरखान लग चुका है और आप लोग सहरी करें, कहीं ऐसा ना हो कि सहरी की अजान हो जाए और हम सब जो है फिर उस गुनाह में शामिल हो जाए। तो मैं भी सहरी शुरू करता हूँ और आप सब भी जो है वो सहरी शुरू कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।